Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 23717106 or 23717117. Those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताज़ा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं हिंद किसान चैनल के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह। हरवीर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर। नमस्कार, थैंक यू राजेश। और पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं राजेश लेख। Government receives a warm response to the production-linked incentive scheme for electronic manufacturing in the country. Gross GST collection for the month of July stands at 87,422 crore rupees. And car maker Maruti Suzuki's total sales declined 1.1% in July, while two-wheeler maker Hero MotoCorp sales dipped 4%. सरकार के अनुसार देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के प्रति अच्छा उत्साह देखा गया है। जुलाई के महीने में कुल जीएसटी संकलन 87,422 करोड़ रुपए का रहा और कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की कुल बिक्री जुलाई में 1.1% गिरी। दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प्स की बिक्री में 4% की गिरावट आई। और आज की पहली खबर, भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का केंद्र बनने के लिए तैयार है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के प्रति अच्छा उत्साह देखा गया है। उन्होंने एप्पल और सैमसंग सहित विश्व की मोबाइल कंपनियों को भारत में विनिर्माण बढ़ाने का निमंत्रण दिया। श्री प्रसाद ने देश में कारोबार करना सुगम बनाने, कुशल और अर्धकुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और विशाल घरेलू बाजार सहित कई आकर्षक बिंदुओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 22 कंपनियों ने आवेदन किया है और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में 3 लाख प्रत्यक्ष और 9 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। Harveer, government's effort to make in India are bearing results now, and we see that there is a warm response to the production-linked incentive scheme for electronic manufacturing in the country. What do you have to say? Yeah, Rajesh, it is very important development for the country, because we depend a lot on electronic imports. So that is the main reason that
if you see, we spend a lot of hard and foreign currency on that and exporting labor in the importing labor in that sense indirectly. But when we goes for our own production, and the government is incentivizing this production for electronics in the country, we will be able to generate more and more jobs. We can have this value for money because the cost of the production will also go down. And you know, electronic is a very important segment now in the economy, and it has become a very basic need for each and every common person, like this telephone and mobile phone and other electronics gadgets and computers, everything. It is very important. So, as you already said, and that many companies applied for this incentive-linked scheme. So it shows an encouraging this thing that people are coming forward to avail this benefit. At the same time, recently we have seen that companies like Apple and Samsung are also more and more interested to increase their production and to come here to establish production facilities. और दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश लाइन पे हैं। सतीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार सर, मेरा जो सवाल है वो यूएस के डाई, निकल और क्वार्टर को लेके है। मैं सर से पूछना चाहता हूँ सर, जैसे उसको 256 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन आज भी वहाँ पे जो उन्होंने अपनी करेंसी को और महंगाई को कंट्रोल किया हुआ कि वो लोग ना उस युग में जी रहे हैं जिस युग में आदमी 4 आने में अपना पेट भर लेते हैं कि भाई उनका जो क्वार्टर है या डाई में, उनके डाई में भी 2 बिस्किट के पैकेट आ जाते हैं। तो सर जो हमारी जो करेंसी है वो तो जो हमारा 1 पैसा 2 पैसा वो तो 1975 में ही बंद हो गए। हमारे जो 4 आने हैं और 10 पैसे वो करीबन 1990 तक चले और 8 आने हमारे 2000 तक चले। सवाल तो क्या है आपका? मेरा सवाल ये कि हमारी करेंसी का क्या हाल होगा 256 साल जब हो चुके होंगे। हमारी 100 का नोट होगा उस वक्त या 1000 रुपए सीधे ही देने पड़ेंगे, और हम वैसी करेंसी को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए जैसे उसने अपने 1 पैसा भी, पैनी भी चलता है वहाँ पे, डाइम भी चलता है, क्वार्टर भी चलता है। जी जी ठीक है हरवी जी। नहीं देखिए, ये कोई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडिया इज अ मच ओल्डर इकोनॉमी। यस, एंड ये इसका कोई मायने नहीं है। वी हैव टू लुक के प्राइस, परचेज प्राइस पैरिटी क्या है उसमें अगर आप देखेंगे कि और हमारे जो अर्निंग्स हैं वो क्या है, उससे हम क्या खरीद पाते हैं, तो उसके हिसाब से वी हैव ग्रोन एनफ आवर इकोनॉमी। अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, ये सब नोशनल चीजें हैं, उसका कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट या कोई उसका कोई ज्यादा मायने नहीं होते। इट डिपेंड्स कि हमारे अर्निंग्स कैसे बढ़ रही हैं, अवेलेबिलिटी क्या है, लोगों की लाइफ में जो है उनका पर कैपिटा इनकम कैसे ग्रो हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो ये पैरामीटर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Joining us now from Mumbai is Ratnakar. Ratnakar, we welcome you to Market Mantra. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. मेरा सवाल है कि अभी मार्केट में सेबी ने कुछ 1 अगस्त से मार्जिन और इसके बारे में कुछ बदलाव किए, उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। और दूसरा सवाल है कि अभी मारुति और हीरो मोटो के सेल कम हो गए, तो उसका अभी ऑयल इंडस्ट्री और तुम्हारा ये जो ऑटो इंडस्ट्री, उसमें अभी फ्यूचर में क्या बढ़ने के चांसेस है कि कम होने के? देखिए, ये जो है आपका अभी जो सेल की आप बात कर रहे हैं ऑटो की, ये तो कोविड की वजह से सेल्स गिरे हैं और ये सबको पता है कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज पैदा हुई उसका काफी बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। तो अभी जैसे जैसे अनलॉकिंग प्रोसेस शुरू हुआ है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये उस पे आएगा पटरी पे, तो ये सेल्स बढ़ेगा। लेकिन एक चीज देखो आप कि 2 व्हीलर्स में काफी डिमांड पोटेंशियल जो सेमी अर्बन और रूरल एरिया से है, और ये सेक्टर हमारा इकोनॉमी का ऐसा रहा है जो फॉर्चुनेटली जिसपे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया है। तो इसलिए ये 2 व्हीलर और लो सेगमेंट जो ऑटो व्हीकल्स हैं उनकी सेल पे बढ़ोतरी होने का चांसेस बाकियों के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। और बाकी जो ये रिस्क मार्जिन का जो रोल आउट किया है सेबी ने, ये एक तरीके से पैरेलल है, पहले भी सिस्टम इस तरीके का था, बट ये कोशिश है कि जो कि
Yeah. Harveer, please carry का on. जो इसके लिए ब्रोकर्स को थोड़ा रिलीफ भी उसमें देने की कोशिश की है, बट प्रोटेस्ट भी आया था उनकी तरफ से। बट ओवरऑल ये कोशिश है कि मार्केट का जो हेल्दी प्रैक्टिसेस को और ज्यादा मजबूत किया जाए। Okay, since we're talking about the auto sector, let's give you some results. Maruti Suzuki India has reported a 1.1% year-on-year decline in total sales at 1.08 lakh units in July. Total domestic sales rose 1.3% to 1.01 lakh units in July. The sales of mini cars comprising Alto and Wagoner shot up over 49% to 17,258 units. But sales of compact car segment, including models such as Swift, Celerio, Ignis, Baleno and Desire, declined over 10% to 51,529 units. The sales of mid-sized sedan Ciaz declined to 1,303 units as compared to 2,397 units in the same month last year. The sales of utility vehicles, including Vitara, Brezza, S-Cross and Ertiga, jumped over 26% to 19,177 units. Exports in July tanked 27% to 6,757 units. And in the two-wheeler maker, Hero MotoCorp has reported a 4% dip in sales to 5,114 lakh 5.14 lakh units in July. The company had sold a total of 5.35 lakh units in July 2019. So, Harveer, whatever you were talking about is proved here. Yeah. और कुछ और रिजल्ट्स भी जान लेते हैं। हुंडई मोटर इंडिया की कुल बिक्री में इस वर्ष जुलाई में पिछले वर्ष के इसी महीने के मुकाबले 28% की गिरावट दर्ज की गई। इस वर्ष जुलाई में कंपनी ने 41,300 वाहन बेचे। जुलाई में घरेलू बिक्री 2% गिरकर 38,200 वाहन पर आ गई, जबकि निर्यात 83% की गिरावट के साथ 3,100 वाहनों तक आ गया। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल बिक्री में जुलाई के दौरान 36% की गिरावट दर्ज की गई। इस महीने में कंपनी ने 25,678 वाहन बेचे। जुलाई में घरेलू बाजार में बिक्री 35% गिरकर 24,211 वाहनों पर आ गई, जबकि निर्यात 45% की गिरावट के साथ 1,467 वाहनों पर पहुंच गया। We joined in from Mumbai by Aditya. We welcome you to Market Mantra. Please ask your question. गुड इवनिंग सर। Good evening. मेरा सवाल ये है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ये इकोनॉमी को किस तरीके से इफेक्ट करेगी, जो लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा इससे। और दूसरा सवाल ये है, I think we lost touch. Harveer, what do you have to say? एक्चुअली देखिए कि न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है अभी उसका काफी डिटेल सामने भी आए और इट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन नाउ एट पीक, क्योंकि इससे बहुत सारे चेंजेस जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आए, स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं। फिर इसमें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्सेस काफी उनके लिए दिया है, ऑटोनॉमी देने की कोशिश की है इसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, और जो ग्लोबली जो वेल एस्टेब्लिश रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी एंट्री अलाउ करने की बात की है डोमेस्टिक हमारे एजुकेशन फील्ड में। तो ये कोशिश है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर स्ट्रीमलाइन करके और एजुकेशन के जो ऑप्शंस हैं उनको बढ़ाया जाए, प्लस उसको बेहतर करने की कोशिश की जाए। तो नेचुरली ए वेल एजुकेटेड कंट्री इज ऑलवेज गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मैडम 2 मिनट। और मुंबई से हमारे चिर परिचित श्रोता मुजाहिर खान जी लाइन पे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश जी को और हरिवीर जी को बहुत बहुत नमस्कार और ईद मुबारक सब लोगों को। आपको भी। हाँ, मेरा सवाल आज हरिवीर जी ये है कि अब जैसे कि गवर्नमेंट ने हमारी काफी हेल्प की है, लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट हमारी बहुत हेल्प कर रही है। तो मैं बैंकिंग डिपॉजिट के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। अभी जैसे हम लोग मेंटेन करते हैं 10,000 रुपये, जैसे मेरा डिपॉजिट है 10,000 रुपीज। अब उसमें अगर जैसे कि मैं अगर किसी वजह से कुछ अब बोलते ऐसा नहीं हो सकता कि बाई चांस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कभी हो जाए, अगर 150 रुपये कम हो जाए
तो कुछ चार्ज बार तो नहीं मारेंगे, या कुछ 200-400 रुपये कम हो जाए तो भी खैर 1 रुपया भी कम होता था ना 10,000 में पर डे के हिसाब से, तो 650 या 750 रुपये चार्ज मारते हैं। हाँ, देखिए वो तो उनका एक साइकिल है, उस साइकिल में अगर आपका एवरेज अमाउंट उतना रहेगा जो कि मिनिमम डिपॉजिट आपका होना चाहिए, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक दिन कम हो गया उसी दिन वो मान लेगा, उसको नहीं होता। देयर इज ए साइकिल अकॉर्डिंग टू दैट। तो लेकिन पेनल्टी तो लगेगी अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें तो कोई राहत बैंक तो नहीं दे रहे हैं, अदर देन जो जीरो बैलेंस अकाउंट्स हैं उनका मसला अलग है। Vinay now joins us from Delhi. Vinay, we welcome you. हेलो Please सवाल पूछिए अपना। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानना चाहता हूँ सर मैं। जी हरवीर जी। देखिए, पीएम आवास योजना है, उसमें सरकार एक तो ये है कि सब्सिडी देती है, और एक योजना है जिसमें आपको इंटरेस्ट में बेनिफिट देती है, जो पीएम आवास योजना शहरी जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी के लिए। अब उसमें आप जिस भी स्कीम में आप फायदा लेना चाहते हैं उसकी जो शर्तें हैं उसको आप सरकार की उस पे जाकर के, पोर्टल पे जाकर के देख सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी में बेनिफिट लेना है। और थाने से हमारे श्रोता विजय लाइन पे हैं। विजय नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि प्राइवेट इक्विटी में पैसा लगाना कितना रिस्की होता है और हमें क्या जांच करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए? देखिए, प्राइवेट इक्विटी तो रिस्की तो होता है, प्राइवेट इक्विटी में पैसा लगाना। उसमें आपको जो है डिपेंड करेगा। एक तो प्राइवेट इक्विटी का ये भी है कि प्राइवेट इक्विटी से लोग उधार भी लेते हैं, दोनों चीजें होती हैं उसमें। इससे दो तरह का ये इन्वेस्टमेंट है कि प्राइवेट इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी होता है। अगर आप किसी कंपनी में या किसी उस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक तो पहलू ये है, और या फिर आप उसमें फंड्स में पैसा डालें उस प्राइवेट इक्विटी के। बट इसमें ये है कि कहाँ पैसा लगाया जा रहा है, किस तरह की कंपनीज हैं, किसमें उसको जो स्टेक लिया गया है, किन शर्तों पे लिया गया है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ लगा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। Harveer, the reports say that the monsoon is going to be normal. While we discuss on this, we have SPS Jain from Noida with us. We'll take his call first and then get into this discussion. SPS Jain from Noida, we welcome you. Please ask a question. नमस्कार जी, हरवीर सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले मिस्टर सतीश ने एक सवाल पूछा था, उनको बहुत डर था कि हमारे यहाँ अठन्नियाँ चवन्नियाँ बंद हो गई जी। 4-5 साल पहले मैं स्विट्जरलैंड गया था, वहाँ पर मिल्क विथ 3% फैट 70 रुपीज पर लीटर था हमारे हिसाब से। उस समय हमारे यहाँ 30 रुपीज था, आधे से कम। तो जैसे आपने कहा पीपीपी बेसिस पर, परचेज प्रायोरिटी बेसिस पर देखना चाहिए। मेरा सवाल आज का ये है कि यूएस अपने सिटीजन्स को पैसे दे रहा है, एड दे रहा है, और उसके लिए वो बिना रफ्तार के डॉलर्स प्रिंट कर रहा है विदाउट एनी चेक जी। वो अपने किसी खजाने से नहीं दे रहा है। तो इसके ऊपर उसके लॉन्ग टर्म इकोनॉमी और इन्फ्लेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, एक तो यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और उनका जो करेंसी है वो पूरी दुनिया उसको अपने पास रखना चाहती है। ये जो डोमिनेंस उसका है, उसका बेनिफिट यूएस लेता है, और इसीलिए वो आपके जो उनका फिस्कल डेफिसिट है उसका ज्यादा चिंता नहीं कर रहा है। अभी उन्होंने जो पैकेज दिया है कोविड पे, बहुत बड़ा पैकेज दिया है, और मल्टीपल उसके फैक्टर्स हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट को दिया है, कंपनीज को दिया है, इंडिविजुअल्स को दिया है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है उनको दिया है, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किए हैं। तो उनको है कि जो डिमांड बनी रहे इकोनॉमी में, क्योंकि वो इसको डिमांड को स्लिप नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि उनकी कंपनियों को उसका नुकसान होने वाला था। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यूएस इकोनॉमी को अभी हालांकि बड़ा भारी नुकसान हुआ है, 10% उनका जीडीपी पहले इसमें गया है डाउन, लेकिन फिर भी ये साइन देखा जा रहा है कि वहाँ का जो कंपनीज हैं उनको बेनिफिट
जल्दी होंगे, ये उस तरह से देखिए तो। और दूसरे उनका जो सोशल सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट है, यूएस है या यूरोप या बाकी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे काफी बड़ा फोकस रहता है। हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो स्केल है वो उतना बड़ा नहीं है और हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कंसिडर करना पड़ता है। और भोपाल से हमारे श्रोता किशोर लाइन पे हैं। किशोर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सबको हार्दिक शुभकामनाएं ईद की और खासतौर पे मुजाहिर खान साहब को, बम्बई वाले को। अच्छा, मेरा सवाल सर वो जैन साहब से रिलेटेड ये थोड़ा सा, यूएस में जो डॉलर प्रिंट करने से 2008 में 3.9% इन्फ्लेशन पहुंच गया था और अब उन्होंने उससे बड़ा पैकेज दिया है 11% जीडीपी का, तो वहाँ इन्फ्लेशन तो जरूर आएगा, इसीलिए गोल्ड भाग गया है, $2000 पहुंच गया है 1400 से। हमारे यहाँ उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो अमेरिका में बढ़ेगा, हमारे यहाँ उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और मेरे को अगर एज एन इन्वेस्टर पैसे सेफ रखने हो आगे के लिए, तो क्या इक्विटी में बने रहना बेटर है म्यूचुअल फंड के थ्रू, या किसी मतलब ऐसी लॉन्ग टर्म एसेट जो प्रॉपर्टी वगैरह में रहना है, क्योंकि रुपया शायद से इन्फ्लेशन से गिरेगा। आपका क्या मानना है सर, और क्या आप इस बारे में सोचते हैं? थैंक यू। नहीं, देखिए कि 2008 का जो क्राइसिस था यूएस का, उसके कई दूसरे फैक्टर्स थे। दैट वाज सब प्राइम क्राइसिस, और जो बैंकिंग सेक्टर उनका था और जो फाइनेंशियल सेक्टर था वो उसके ऊपर उसका सीधा इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। तो अभी का जो इशू है वो थोड़ा अलग है। अभी भी यूएस जो है वो प्रिंटिंग कर रहा है मनी और उसको कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में डाल रहा है, जिस तरह के बेनिफिट लोगों का है उसमें उनको देने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे फैक्टर उन्होंने देखे कि उसका कोई डायरेक्ट उन पे इन्फ्लेशनरी इमीडिएटली इम्पैक्ट आएगा। जहां तक ये है कि गोल्ड का जो है ऊपर जाने का वो इसलिए भी है कि जो इन्वेस्टमेंट के बाकी एवेन्यूज हैं उनमें इशू है और कई कंट्रीज ने भी गोल्ड खरीदा है। तो ये गोल्ड के ऊपर जाने के कई सारे फैक्टर हैं, बिकॉज इन दिस अनसर्टेनिटी के जो टाइम है अभी ग्लोबल इकोनॉमी में, उसमें कोई भी जो सेफ हेवन है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज गोल्ड, और लोग उस पे वहां पर जाते हैं। हमारे ऊपर डायरेक्ट तो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट बिकॉज अभी जैसे आज भी मतलब आप देखिए कि गोल्ड पे गवर्नमेंट ने फिर एक गोल्ड बॉन्ड का सीरीज इशू किया और ये 5300 प्लस कुछ उस पे उसका रखा है पर ग्राम। तो वी आर अलाइनिंग आवर प्राइसेस अकॉर्डिंगली। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, उसमें तो गवर्नमेंट हमारी और ज्यादा पैसा जुटा पा रही है अगर उस तरह से देखें उसके प्राइसेस को। तो उसका डायरेक्ट कोई मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट अभी हमारी इकोनॉमी पे आएगा उस तरह से। जहां तक मार्केट का आपका सवाल है, मार्केट ने बहुत ही तेजी से उभरा है मार्केट मार्च के बाद से, और उसका जो पिछले 2 महीने का ग्रोथ है वो एक नया रिकॉर्ड उसने बनाया है। जाहिर सी बात है कई स्टॉक 50% 100% तक बढ़े हैं। ये इन्वेस्टर को देखना पड़ेगा कि वो कब तक मार्केट में बना रहना चाहता है, उसको कहाँ निकलने की जरूरत है। बट ये बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए क्योंकि अभी मार्केट काफी ऊपर गया है। और कोलकाता से हमारे श्रोता मुश्ताक लाइन पे हैं। मुश्ताक नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार, सबको ईद मुबारक। जी सर हमको बताइए, ट्रेडिंग में हम लोग स्टॉप लॉस जो देते हैं वो कितना डाउन करके देना चाहिए और वो क्यों देते हैं हम। और दूसरी बात सर, गोल्ड का प्राइस जो आप बोलते हैं डॉलर में आउंस का, वो कितना कैरेट है और हमारा इंडिया का है वो कितना कैरेट है? ठीक है जी। ये आप गोल्ड का देखिए, गोल्ड तो 24 कैरेट तो जो उसका होता है प्राइसिंग उसी के हिसाब से होती है, बिकॉज 2 तरीके का प्राइसेस होता है उसमें। अगर आप देखेंगे तो एक ऑर्नामेंट के लिए प्राइस होता है और ये जो है आपका दूसरा इसके लिए होता है जो प्योर गोल्ड है अगर जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। सो बाकी जो आपका जो स्टॉप लॉस को लेकर के आपने बात की है कि कोई जो कोई ऑर्डर है उसमें आप किसी को एडवांस ऑर्डर आप देना चाहते हैं, तो ये फिर आपका डिपेंड करता है कि जो प्राइस आप सेट करेंगे, प्राइस लिमिट के हिसाब से आप बता पाएंगे ना कि कहाँ स्टॉप लॉस करना है आपको। From Gurugram, we are joined in by Navneet. We welcome you, Navneet. Hello. I don't think Navneet is online with us. Yeah. Good evening. Good evening. बोलिए। मेरा जो क्वेश्चन है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है अभी तक वो इन्फ्लेशन कंट्रोल को टारगेट करते ही रही है,
पर क्या ये समय आ चुका है कि आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बजाय जीडीपी ग्रोथ के ऊपर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंसंट्रेट करना चाहिए? असल में देखिए कि दोनों चीजें क्या उस वक्त के सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से करता है कि आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है 4% ±2, उसको मद्देनजर रख के आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को तय करता है। बट ग्रोथ इज ऑलवेज सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि उसका कोशिश है कि जो आपका इकोनॉमी में जो कैपिटल इन्फ्यूजन होता है वो एक सही प्राइस पर हो, लो प्राइस पर हो, जिससे कि ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बने, इन्वेस्टमेंट का दायरा बढ़े, जॉब क्रिएशन हो और इकोनॉमी की ग्रोथ आए। तो ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेशन में होता है, ग्रोथ ऑलवेज रिमेन अ पॉइंट जब भी ये डिसीजन लिया जाता है। Quickly, we were talking about good rains and good monsoons, and there's belief that more areas will be planted, Kharif crops will be planted, say up to the tune of 14% higher than last year. So that augurs well for us as a nation, because we all are dependent on agriculture, and 14% more speaks well. Rajesh, actually, when we see this crop cultivation area, sometimes it depends on what kind of basically rainfall is happening, what is the duration, when the monsoon arrived, whether it is normal time or it is late. But picture gets clear after mid-season roughly. We are in this first week of August, and because the plantation will remain continue till end of August. Okay. So this gap may be filled in this process, but definitely when there is a good monsoon and the uniform coverage in the country, then area gets increased, because there is a lot of land in the country which is rain fed. Okay. If there is a good rainfall, then the crop gets cultivated in those areas. Okay. So it is a good sign that we will have a good Kharif. Okay. Moving on, the gross GST collection for the month of July stood at 87,422 crore rupees, according to a Finance Ministry statement. Of this gross collection, the CGST is 16,147 crore rupees, the SGST is 21,418 crore rupees, and the IGST is 42,592 crore rupees, which includes 20,324 crore rupees collected on import of goods and a cess collection of 7,265 crore rupees. The revenues for the month of July are 86% of the GST revenue in the same month last year. और चेन्नई से हमारे श्रोता काशीनाथ जी लाइन पे हैं। काशीनाथ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। आपका मार्केट मंत्री टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार। सवाल ये है कि मेरा SBI कैप सिक्योरिटी में मेरा डेमो अकाउंट है, तो जो लॉकडाउन में है तो पहले जो ऑफिशियली बना के शेयर खरीदता था, बेचता, अभी 3-4 महीना से वही कोई ऑफिस में, और उसका जो कस्टमर केयर का नंबर था वो भी काम। ओके, मुझे लगता है आपको कनेक्शन की प्रॉब्लम है हरबीर जी। व्हाट शुड ही एड्रेस, हाउ शुड ही गेट हिमसेल्फ एड्रेस्ड? Actually, he has to contact to the concern this grievance department of the bank, and he has to reach out to them. Either he can write a mail if nobody is answering his question or his query. हाँ, तो जरा हिंदी में इसको जल्दी 10 सेकंड है हमारे पास। हाँ, आप जो है कि उनको मेल लिख सकते हैं, जो उनका ये डिपार्टमेंट है जो जहाँ आपका कंसर्न प्रॉब्लम है, तो अगर कोई फोन पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कई बार कस्टमर केयर में प्रॉब्लम आती है। जी हरवीर जी, जी हरवीर जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। And before we close, a reminder of the headlines. Government receives a warm response to the production-linked incentive scheme for electronic manufacturing in the country. Gross GST collection for the month of July stands at 87,422 crore rupees. And car maker Maruti Suzuki's total sales declined 1.1%. Two-wheeler maker Hero MotoCorp sales dipped
4%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.